Good afternoon, my name is Kanika Gupta and today I'll be teaching you history for CUET exam. I have qualified NET exam in 2022 and since 2023 I have been working as an assistant professor in Delhi University. I have worked in Mata Sundari College and Sri Aurobindo College and currently I am working in non-collegiate department of PGTAB history. So today we will start the first topic, that is the stories of the Hadappans, the stories of the first cities. Harappan archaeology. The stories of the first cities, Harappan archaeology. So the focus, one should first ask the question why we are studying about the Harappan civilization. So Harappan civilization basically was the first urban civilization of India. First urbanization or the urban civilization of India, and it is the ancient most civilizations. Ancient most civilization as we talk about. So this civilization was termed as Harappan civilization. Why? Because the first site that was discovered by Dayram Sahani was Harappa in 1921. So it was John Marshall who was the Director General of Archaeological Survey of India at that particular point of time, and in 1921 it was under him that Dayram Sahani discovered Harappa. So it was on the basis of Harappa that the civilization was termed as Harappan civilization. Now the interesting fact is that before it was termed as Harappan civilization, it was called as Indus Valley civilization. Why? Because majority of sites were initially discovered on the banks of river Indus. Alright, the first site was Mohenjo-daro and it is situated on the banks of river Indus. It is situated in Larkana district of Pakistan and Harappa is situated on the banks of river Ravi. So this is a basic introduction of why we are studying about the Harappan civilization and why Harappan civilization is important. So whenever we talk about any civilization, we should know the time frame of that civilization. So Harappan civilization, let's just take a short form of that. Harappan civilization had three main time phases, or we can say it is divided into three phases. First is early Harappa, then is mature Harappa, and then is late Harappa, or we can say later Harappa. Early Harappa is the time period when Harappan civilization was at its very rudimentary form. Rudimentary form का मतलब क्या है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हम एक अर्बनाइजेशन, एक शहरीकरण का जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हुए देखते हैं, जिसमें कि हमारे जो घर बने होते थे वो मिट्टी के बने होते थे या मड के बने होते थे. तो अभी तक हम पक्की ईंटों की तरफ या बंट ब्रिक्स की तरफ नहीं जाते हैं. अभी हमारे जो घर है बन रहे हैं वो कच्ची ईंटों के बन रहे हैं. ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है हमारा अर्ली हड़प्पा का, दैट बेसिकली इज 3300 टू 2600. 2300 से 2600 BCE का टाइम पीरियड जो है हमारा अर्ली हड़प्पा का है. इस टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर भी था. Why agriculture? Because agriculture का ये पहला कोई एविडेंस नहीं है. This was not the first time when agriculture was seen in India. Agriculture सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा मेहरगढ़ में, जो कि एक नियोलिथिक, एक नवपाषाणिक स्थल था, एक नियोलिथिक साइट थी मेहरगढ़. इसका टाइम पीरियड 7000 BC या 7000 BC के आसपास है. यहाँ पे हम कॉटन की एविडेंस देखते हैं, कॉटन को ग्रो करा जा रहा है. इसके अलावा एक सेटल्ड लाइफस्टाइल जो है वो मेहरगढ़ से हमें स्टार्ट होते हुए दिखती है. सो 3300 से 2600 का टाइम पीरियड जो है यहाँ पे हम अर्ली हड़प्पा देखते हैं, जिसमें कालीबंगा भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि मेच्योर और लेट हड़प्पा तक जाती है. इसके अलावा हमारे पास है धोलावीरा. ये ऐसे दो साइट्स हैं जो हमारा अर्ली हड़प्पा से मेच्योर हड़प्पा एंड देन लेट हड़प्पा, जब हड़प्पा का हम डिक्लाइन देखेंगे तब से हमको ये चीजें दिखती हैं. नाउ अगर हम मेच्योर हड़प्पा के टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये बेसिकली 2600 से अप्रॉक्स 1900 BCE तक जाता है, 2600 से 1900 तक. यही एक मेच्योर टाइम पीरियड हमारा है जहाँ पे हम अर्बनाइजेशन को उसके बेसिक से अब हम एक मेच्योर फेज पे देखते हैं, जब शहरीकरण जो है
वो बिल्कुल सेटल्ड हो चुका है। हड़प्पा में टाउन्स के राइज हम देखते हैं, शहरों का विकास, जिसको हम साइट्स बोलते हैं बेसिकली, उनका विकास हम इस टाइम पे देखते हैं। यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने मेच्योर फेज पे प्रॉपरली ग्रो हो चुका है। हमारे पास ट्रेड है, एग्रीकल्चर है। ट्रेड जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बेसिस पे है, जो हम आगे अभी देखेंगे। इसके अलावा मेच्योर हड़प्पन फेज पे हमारे पास क्राफ्ट प्रोडक्शन है, सील्स हैं, वेट्स, मेजरमेंट्स, ये सारी चीजें हैं। और हमारा मेन फोकस मेच्योर हड़प्पन साइट पे ही रहेगा। अगर हम सीयूटी के एग्जाम की बात करते हैं, सो हमें मेच्योर हड़प्पन फेज की कुछ साइट्स कौन से रिवर पर हैं, किसने फाउंड की है, या फिर उनके मेन फीचर्स क्या हैं, उस पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। देन लेट हड़प्पा इज बेसिकली द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन की बात होती है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है पतन स्टार्ट हो जाता है। इसका टाइम पीरियड 1900 से 1600 BCE तक का है। अब इस समय पे क्या हुआ कि जो मेजर टाउन थे या शहरीकरण था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड शहरीकरण का डिक्लाइन होने की वजह से दोबारा हम देखते हैं एग्रीकल्चर या रूरल सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन हम इसे नहीं कह सकते हैं, रूरल साइट्स का राइज है, ग्रामीकरण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद अब 1600 के बाद अगर हम देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है इंडिया में, या एक इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन आती है इस ग्रामीकरण के बाद, जो थी हमारी वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, हालांकि अभी हमें वैदिक नहीं पढ़ना है, बट एक टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उससे पहले हमारे पास क्या था, और जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होगी तो उसके बाद हमारे पास कौन सी सिविलाइजेशन या इंडिया में कौन सा फेज जो है वो आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा एंड द लेट हड़प्पा। अब जब हमने टाइम फेज की बात कर ली है, जब हमने टाइम फेज की बात कर ली है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। किस तरीके से, किन एरियाज में हम एक साइट की बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या सिर्फ इंदस रिवर पे थी, जिस वजह से उसे पहले इंदस वैली सिविलाइजेशन बोला गया, या ये और भी हमें साइट्स पे मिली है। सो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं, सो सबसे पहले जो हमारी साइट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो एक्सकवेट हुई थी या डिस्कवर करी गई थी, दैट वाज रोपर। रोपर जो है ये पंजाब में सतलुज नदी के किनारे जो है ये बसाई गई एक साइट है। ठीक है, सो सतलुज नदी के किनारे रोपर आफ्टर इंडिपेंडेंस एक साइट एक्सकवेट की गई थी। इसके अलावा और भी कुछ साइट्स जो है हमें देखनी है। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करें, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनमें कौन से मेजर एक्सटेंट थे। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट नॉर्थ में था हमारा मांडा। मांडा ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में था। मांडा की साइट थी जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा साउथ में हमारे पास दाइमाबाद। दाइमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। ईस्ट में वी हैव आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश मेरठ, एंड वेस्ट में वी हैव सूतकांगेडोर। ठीक है, ये हमारा बलूचिस्तान में है। एंड देन वी हैव, सो ये चारों इंपॉर्टेंट साइट है। नॉर्थ में वी हैव जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, एंड वेस्ट में वी हैव सूतकांगेडोर एंड बलूचिस्तान। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जब हम साइट्स की बात करते हैं, सो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट साइट है जो कि अफगानिस्तान में है, दैट इज शॉर्टुगई। इट्स SHORTUGHAI, शॉर्टुगई इन अफगानिस्तान। सो ये पूरा एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है विच इज समहाउ सीन कि 12,99,000 किलोमीटर्स का जो है पूरा एक्सटेंट है हमारा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, इसलिए इसे हड़प्पा का नाम दिया गया था। और इंदस वैली सिविलाइजेशन जो इनिशियली हमारे जॉन मार्शल जी ने नाम दिया था, उसको बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है एक नाम दिया गया था। अब अगर आप देखिए कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, पहली अर्बनाइजेशन, पहला शहरीकरण है, सो एडवांस एक सिविलाइजेशन इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्या क्या फीचर्स थे, क्यों इंपॉर्टेंट था, अब हम इसकी तरफ जो है हम
जाएंगे। वाई दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट अर्बनाइजेशन, यस, द जोग्राफिकल एक्सटेंट वॉज एक्सटेंसिव एक्चुअली। अगर आप देखते हैं 12 लाख किलोमीटर्स की अगर हम बात करते हैं, सो इट वॉज अ वेरी वास्ट and extensive civilization. If we talk about now Harappan civilization, when it was excavated or when it was discovered, so majority of evidence जो है Harappan civilization के वो कहाँ से आते हैं? Because as you know, the most important thing is Harappan civilization का कोई लिटरली एविडेंस जो है वो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए। देयर इज नो डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो मेजॉरिटी जो हम एविडेंस पे बेस्ड हैं दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। सो इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, सो हम किस पे फोकस करेंगे? ऑब्वियसली द टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन प्लानिंग के अलावा द सील्स, सील्स मतलब जो हमें मोहरें वहां से मिली है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स जो माप या तोल हमको मिले हैं, ट्रेड किस तरीके से था, ट्रेड में भी कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स, अगर सील्स पे कुछ लिखा है तो वो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है। सो हम ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे, पुरातात्विक स्रोतों पे जो है हम यहाँ पे फोकस करते हैं। सो पहले अगर हम बात करते हैं हमारे टाउन प्लानिंग की, जो हमारा मेजर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिसमें से हमें सील्स मतलब मोहरें मिलती हैं, बिल्डिंग्स हम देखते हैं, बिल्डिंग्स के अलावा कौन सी सिटीज में किस तरह का ट्रेड है वो सब हम देखते हैं। सो टाउन प्लानिंग जो है, व्हाई टाउन प्लानिंग? Now, if we see, Harappa was not the only civilization that happened in 2600 BCE. हड़प्पा सिर्फ एक इकलौता सिविलाइजेशन या शहरीकरण नहीं था, इसके अलावा हमारे कुछ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस जो थे वो वर्क कर रहे थे, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। लेकिन हड़प्पा के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छे थे। हम आगे अभी जब ट्रेड की बात करेंगे हम देखेंगे क्यों मेसोपोटामिया से हमें क्या ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है हड़प्पा का ट्रेड जो है वो इनके साथ हो रहा है। सो टाउन प्लानिंग वाज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना में इस तरह के अर्बनाइजेशन या टाउन प्लानिंग नहीं देखी गई है, शहरीकरण नहीं हुआ है जिस तरह से हमारा टाउन प्लानिंग जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, या हम कह सकते हैं एक मेच्योर हड़प्पन फेज में जो है हम देखे जाते हैं। तो टाउन प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है एवरी हाउस हैड अ बाथरूम, वेल एंड every house had a bathroom, well and drain. ड्रेनेज सिस्टम जो हड़प्पा का है वो एक सबसे यूनिक फीचर है, इसकी भी हम बात करेंगे। मेजर साइट्स कौन सी है अभी हम देखेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, हर घर में अपना एक पर्सनल बाथरूम है, एक कुआं है, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं कि हम अपने घरों में प्राइवेट नल या कुछ इस तरीके से मोटर्स, इस तरह की चीजें नहीं है। सो वाटर कहाँ से ड्रॉ होगा? ऑब्वियसली वेल से ड्रॉ होगा, राइट। एंड सैनिटेशन का जो प्रॉपर हमारा ख्याल रखा जा रहा है वो ड्रेनेज सिस्टम से, नालियों द्वारा रखा जा रहा है, जो कि हमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में देखने को नहीं मिलती है। ड्रेनेज की अगर हम बात करते हैं, यूनिक फीचर जैसे मैंने आपको बताया, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में से सिर्फ नालियां हमको ज्यादातर हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, और साथ ही साथ ये ड्रेन्स जो थी ये कवर्ड ड्रेन्स थी। कवर्ड मतलब जो नालियां थी वो हर घर में से निकाली जा रही थी, और नालियां खुली नहीं थी, ड्रेन्स जो थे वो कवर्ड थे, या तो वुड से मतलब लकड़ी से इन्हें कवर किया जा रहा है, या फिर स्टोन स्लैब से या फिर पत्थरों से इन्हें कवर जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर घर में अपनी एक नाली है, और ये जो नाली है, ये ड्रेन्स हैं, ये कनेक्ट करती थी सिटी के बाहर एक मेन ड्रेन से, एक मेन नाली से सिटी के बाहर ये कनेक्ट होती थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हर घर में एक ड्रेनेज सिस्टम है, एंड ड्रेन वाज द यूनिक फीचर, एंड नाली ज्यादातर कवर होती है। अब अगर आप देखें, ये सिस्टम जो है हम करंट में भी फॉलो करते थे। अगर आप कभी चांदनी चौक या शादरा या इस तरह की साइट्स में आप जाते हैं, सो आप देखेंगे कि जो घर है, घर से ड्रेनेज पाइप्स जो है वो एक स्ट्रीट में ड्रेन्स में ही जा रहे हैं। वो ड्रेन्स हालांकि अब जो है वो इतनी कवर नहीं होती हैं, शादरा में कुछ ऐसे एरियाज हैं आज भी। सो आप अगर देखेंगे, सो हिस्ट्री को अगर आप देख रहे हो, सो कुछ चीजें आपको आज भी देखने को हमारे टाइम में मिलती है कंटेम्प्रेरी। सो हिस्ट्री इज नॉट ओनली कि आप घर पे बैठो, बुक्स खोलो, पढ़ो, नो।
आपको चीज़ें अपने आसपास जो है हमेशा नोटिस करनी चाहिए कि हिस्ट्री में हम क्या था और अभी हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. सो दिस ड्रेनेज सिस्टम इज स्टिल फॉलो. लेकिन अगर आप दिल्ली के कुछ अदर एरियाज में, साउथ दिल्ली या कुछ ऐसे एरियाज में जाते हैं, मोस्टली ड्रेन्स अब कवर होती है, कॉन्क्रीट से ही वो कवर होती है. आपको जो है कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो आपको उसको डिग अप कराना पड़ता है. बट आज भी शारदा चांदनी चौक ऐसे कुछ एरियाज में ड्रेन्स ओपन है. लेकिन ये यूनिक फीचर हमारा हड़प्पा में है, जब जब एक फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो देखी जा रही है. सो द मेन फोकस इज ऑन सैनिटाइजेशन, हाइजीन, क्लीनलीनेस पे ये लोग फोकस करते हैं. ठीक है. और ये ड्रेन्स जो है कालीबंगा में भी हर घर में देखी गई है. लोथल एक इंपॉर्टेंट साइट है जो अभी हम ट्रेड एक सेंटर में देखेंगे, वहां पे भी नालियां जो है ये देखी जा रही है. ठीक. इसके अलावा टाउन प्लानिंग का और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? रोड्स या स्ट्रीट. सो जो स्ट्रीट्स थी या जिसको हम रोड्स कहते हैं, गलियां और जो मेन रोड थी, सड़कें थी, वो एक ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी. इस तरीके से बनाई जाती थी. हर रोड, हर स्ट्रीट जो है एक दूसरे को 90 एंगल पे, राइट एंगल पे जो है वो कट करती थी. इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में जो हाइजीन है उसका बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था. सो हर स्ट्रीट को इस तरीके से बनाया जाता था कि जब विंड फ्लो हो, सो ऑटोमेटिकली जो भी कचरा वहां है, जो भी गार्बेज है, वो सड़क किनारे पिट्स में जो है वो खुद ही इकट्ठा होता चला जाएगा. सो यू विल सी दैट दे वर मोर एडवांस्ड. क्लियर. अब क्या होता है कि अगर अभी कहीं कूड़ा रहता है तो वो हवा से साइड नहीं होता है, बिकॉज हमारा कंक्रीट जो है वो हमारी सड़कों में होता है. लेकिन यहाँ पे कंक्रीट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किसका किया जा रहा है? ब्रिक्स का, स्टोन्स का यूज़ किया जा रहा है. पिट्स बनाए जा रहे हैं, राइट एंगल पे सड़कें एक दूसरे के साथ बनाई जा रही हैं. दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हमें किसी भी और सिविलाइजेशन में देखने को यहाँ पे, किसी भी और का मतलब इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि कंटेम्प्रेरी थी, और हम बात कर रहे हैं 2600 BCE की, 2600 की. ठीक है. तो स्ट्रीट्स एंड रोड से एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे ये कट करते. हर घर में खुद का एक बाथरूम, वेल और ये सारी चीजें हैं. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इसके अलावा प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइवेसी इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. ठीक है. प्राइवेसी किस तरह से है कि जो डोर्स हैं वो मेन स्ट्रीट पे ओपन नहीं हो रहे हैं, वो बैक स्ट्रीट पे ओपन हो रहे हैं. हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है. देखो, जब भी हम किसी कंपेटिटिव एग्जाम पे फोकस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम फोकस करते हैं कि हमें कंपेटिटिव एग्जाम पे ध्यान देना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी या ये सारी चीज़ों के अलावा हमें फोकस किस पे करना है? एक्सेप्शंस पे. ठीक है. कि क्या चीज़ है जो उससे अलग थी. सो अलग क्या था? लोथल में एक घर हमें मिले हैं कुछ ऐसे, जहाँ पे जो डोर्स है वो मेन रोड पे ओपन होते हैं, ना कि बैक स्ट्रीट पे. ठीक है. और लोथल ही है एक ऐसी साइट जहाँ पे ड्रेन्स में भी एक्सेप्शन है कि लोथल के जो घर हैं वो भले ही कच्ची ईंटों से बने हो, लेकिन जो नालियां हैं वो किससे बनी है? पकी हुई ईंटों से. दैट इज बंट ब्रिक्स आप उसको बोलो, बेक्ड ब्रिक्स आप उसको बोलो, वो आपके ऊपर है. लेकिन ध्यान हमें रखना है बंट ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स एंड लोथल का. क्लियर. कि जो नालियां हैं लोथल की, जो ड्रेन सिस्टम है वो किससे बना है? बंट ब्रिक्स से या बेक ब्रिक्स से बना है. अदरवाइज जो हमारा लोथल के कुछ मकान है वो कच्ची ईंटों से भी बने हुए हैं. हालांकि कच्ची ईंटों से बने होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोथल में शहरीकरण नहीं था. लोथल भी शहर का ही पार्ट था, मेचौर हड़प्पन फेस का ही पार्ट था. ठीक है. टाउन प्लानिंग. अब टाउन्स हमने बात करी, घर कैसे थे. ठीक है. बंट ब्रिक्स से बने होते थे. सो ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिक्स का. ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होती थी. स्टैंडर्डाइज मतलब इनका मान जो था या मानक जिसको हम बोलते हैं वो एक तरह से था, यूनिफॉर्म था. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 4:2:1. कई बार क्वेश्चन जो है वो इस रेशियो पे भी आता है. ये सीयूईटी के लिए भी है, जो बच्चे किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कई बार हम बीएड भी करते हैं, उसके लिए भी ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है. हड़प्पन सिविलाइजेशन का ब्रिक्स का, ईंटों का क्या मान था. सो 4:2:1 जो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रिक्स की हम बात करते हैं. सो नाउ टाउन प्लानिंग की हमने बात करी. अब हम पढ़ेंगे कुछ मेजर टाउन्स. क्या इंपॉर्टेंट मेजर टाउन्स थे? व्हाट वर द मेन साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है. आई होप बाइलिंगुअल है तो सब बच्चों को अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा. कुछ भी इंपॉर्टेंट किसी को चाहिए हो कि मैम आप इंग्लिश में मत पढ़ाइए ज़्यादा, आप हिंदी में मत पढ़ाइए, या जो भी किसी को डाउट है प्लीज़ क्लियर उसको कर लीजिएगा. ओके.
सो मेजर टाउन्स की अगर हम बात करते हैं, मेजर साइट्स की अगर हम बात करते हैं, सो हड़प्पा में मोहनजोदारो, अभी हमने पढ़ा था हड़प्पा में मोहनजोदारो के बारे में हमने बात करी थी। कहाँ पे सिचुएटेड है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस रिवर पे सिचुएटेड। हड़प्पा पे हमने बात करी थी, हड़प्पा किस रिवर पे सिचुएटेड है? हड़प्पा सिचुएटेड है रावी नदी के किनारे। ठीक है, वो भी पाकिस्तान की साइट है, रावी नदी पर है। ये भी पाकिस्तान की साइट है मोहनजोदारो, लेकिन ये सिचुएटेड है लरकान डिस्ट्रिक्ट में, और नदी जो है वो है हमारी इंडस रिवर। याद रखेंगे, अगर हम इंडस की बात करते हैं तो इंडस के अलावा पंजाब की और 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। हमें पता है पंजाब को पंजाब नाम दिया गया है 5 नदियों के कारण, 5 रिवर्स के कारण, जो कि हमारी है झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 5 रिवर्स हैं। नेम अगर किसी को चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। इसके अलावा लरकाना पाकिस्तान में इंडस नदी के किनारे हमारा मोहनजोदारो है, जिसको 1922 में एक्सकवेट किया था RD बैनर्जी ने। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। RD बैनर्जी, डबल E के साथ है ये। RD बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी जो है 1922 में इन्होंने एक्सकवेट किया था मोहनजोदारो को। सो आप देखेंगे एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इससे पहले हड़प्पन साइट्स हमको मिली है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि पहले डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब बना था उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, तब उस समय में कुछ ईंटें इन्हें मिली, कुछ मोहरें उन्हें मिली अलेक्जेंडर कनिंघम को, बट क्योंकि उनका मेन फोकस था महाजनपदास पे, महाजनपदास सेकेंड अर्बनाइजेशन है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, पहला शहरीकरण है 2600 BC की हम बात करते हैं। दूसरा शहरीकरण इंडिया में देखा जाता है 6th सेंचुरी में, जब हम देखते हैं महाजनपदास का राइज। वो टॉपिक भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे मेन फोकस करते हैं। क्लियर? आई होप सबको अभी तक क्लियर हुआ है जितना मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं। सो मोहनजोदारो, सो अलेक्जेंडर कनिंघम को जब मोहरें मिलती हैं वो इस चीज़ को ढंग से डिसाइफर या उसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। उसके बाद जब जॉन मार्शल बनेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर, तब हम यहाँ पे RD बैनर्जी, दयाराम साहनी जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट देखेंगे, जिनकी हेल्प से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा का निर्माण नहीं एक्चुअली डिस्कवरी हमको दिखती है। क्लियर? सो मोहनजोदारो, व्हाई मोहनजोदारो इज इंपॉर्टेंट। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा प्लस मोहनजोदारो, इसको ट्विन कैपिटल बोला जाता था, जुड़वा राजधानी बोला जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को ट्विन कैपिटल कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कई बार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि किसने किस साइट को डिस्कवर किया है, व्हाट वर द ट्विन कैपिटल, और यू नो व्हिच वर द ट्विन कैपिटल्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो जुड़वा राजधानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा और मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो मैंने आपको जैसे बताया एक लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्लियर? मोहनजोदारो की हमने देखा कब सिचुएटेड है, किसने डिस्कवर किया। अब मोहनजोदारो के टाउन से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली है वो हम देख लेते हैं। मोहनजोदारो जो है, यहां से हमको 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिली है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी एंड असेंबली हॉल। ठीक है, ये हमें मिला है मोहनजोदारो के सिटाडेल में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ रह गया है, वो ये है कि टाउन्स जो है बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, लोअर टाउन एंड दूसरा सिटाडेल। लोअर टाउन जो है ये ईस्ट में होता था, मतलब पूर्वी भाग में लोअर टाउन मिलता है। सिटाडेल जो है वो हमें वेस्टर्न पार्ट में या पश्चिमी भाग में जो है देखा जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी टाउन्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। लोअर टाउन निचला भाग है, ठीक है, ईस्ट में सिचुएटेड है, एंड वेस्टर्न पार्ट में हमारा सिटाडेल है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड है। ये मैं आपको बता देती हूँ, सिटाडेल जो है बेसिकली एक दुर्गीकरण का हिस्सा था। दुर्गीकरण आजन, इसकी जो वॉल्स, जो सिटाडेल था वो चारों तरफ से वॉल से 45 होता था, और साथ ही सिटाडेल एक प्लेटफॉर्म पे जो है बसाया जाता था। प्लेटफॉर्म मतलब कि ईंटों का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म होता था, एक चबूतरा होता था जिसके ऊपर सिटाडेल को
बनाया जाता था। सिटाडेल चारों तरफ से जो है फोर्टिफाई होता था, मतलब इसका दुर्गीकरण, फोर्टिफिकेशन जो था वो किया जाता था। सिटाडेल वेस्ट में मिलता था और क्योंकि ये फोर्टिफाइड था, एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि शायद इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस भी था। ठीक है, या तो ये हमारी पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट था, या तो यहाँ पे कुछ सोसाइटी के हाई लोग रहते होंगे, कास्ट क्लास का डिफरेंस अभी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है। कोई हमें प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले हैं या कोई लिटरेरी एविडेंस हमको नहीं मिला है, बट इस तरह से माना जाता है क्योंकि सिटाडेल जो है फोर्टिफाइड था, दुर्गीकरण करा गया था, एक रेस प्लेटफॉर्म पे था, एक हाई प्लेटफॉर्म पे था। सो सिटाडेल हम देखते हैं इस तरीके से। बाकी जो लोअर टाउन है, क्योंकि ये फोर्टिफाइड नहीं था, नो फोर्टिफिकेशन, ठीक है, इसका दुर्गीकरण जो है वो नहीं किया गया था, और साथ ही साथ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है ज्यादातर वो हमें लोअर टाउन से ही मिलती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है मोहनजोदारो पढ़ने से पहले कि जो मेजॉरिटी ऑफ टाउन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, लोअर टाउन एंड सिटाडेल। ठीक है, लोअर टाउन जो ईस्ट एरिया में है, फोर्टिफाई नहीं है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिली है कॉमन लोगों की। सिटाडेल जो कि हमारे वेस्ट एरिया में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी यूज करा जाता है, ऐसा कहा जाता है, एक रेस प्लेटफॉर्म पे है और फोर्टिफाइड है, दुर्गीकरण है। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब हम सिटाडेल और लोअर टाउन की बात करते हैं, सो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है कि क्या हर टाउन में सिटाडेल और लोअर टाउन जो है हर साइट में फोर्टिफाइड है या हर जगह सिटाडेल हमें मिला है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम हम देखते हैं। जब चान्होदारो को एक्सकवेट किया गया, चान्होदारो जो है बेसिकली ये मोहनजोदारो से कुछ ही किलोमीटर है, ये भी पाकिस्तान में है, इंदस नदी के किनारे। चान्होदारो को सिटी विदाउट सिटाडेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी विदाउट सिटाडेल, बिना दुर्ग का शहर। तो चान्होदारो जो है वहां पे सिटाडेल हमको नहीं मिलता है। अब कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सिटी विदाउट सिटाडेल किसको कहते हैं या बिना दुर्ग का शहर किसे कहते हैं? सो वो चान्होदारो है। एक ट्रिक है इसको याद रखने के, सिटी विदाउट सिटाडेल आप सी देख रहे हैं, चान्होदारो सी से ही है। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं जब भी आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सो सिर्फ रट्टाफिकेशन से कोई चीज नहीं होती, आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो चान्होदारो इज अ सिटी विदाउट सिटाडेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक और एक्सेप्शन हमें मिला गया है, लोथल। लोथल जैसे मैंने आपको बताया ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल इज सिचुएटेड इन गुजरात। रिवर जो है वो है भोगवा रिवर, या इसे कई जगह भागतरव नदी भी या भोगवा नदी जो है वो लोथल को कहा जाता है। ठीक है, सो लोथल का क्या एक्सेप्शन है? लोथल में जो सिटाडेल है और लोअर टाउन है ये दोनों एक ही वॉल में फोर्टिफाइड है। ठीक है, लोथल का सिटाडेल मतलब जो दुर्ग है और लोअर टाउन जो है निचला भाग जो है वो एक ही दीवार या एक ही रक्षा प्राचीर में जो है फोर्टिफाई किया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कालीबंगा की, कालीबंगन जो है या कालीबंगा जिसको आप बोलते हैं, कालीबंगन जिसको आप बोलते हैं, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान में, सरस्वती रिवर पे, या इसका एंशियंट नेम जो था घाघर हाकरा रिवर। ठीक है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में घाघर हाकरा नदी या सरस्वती नदी, अगर आपको ये भी पता होगा सरस्वती रिवर जो है वो अभी हम कहते हैं कि लुप्त हो गई है, वैनिश हो गई है, या इस तरह की नदी है ये सरस्वती रिवर। सरस्वती या घाघर हाकरा इसका पुराना नाम है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन पेपर में घाघर हाकरा नदी की साइड पूछ लेते हैं, कई बार सरस्वती नदी की साइड पूछ लेते हैं। सो ये एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो सरस्वती घाघर हाकरा राजस्थान में कालीबंगन का साइड थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सिटाडेल है और लोअर टाउन है ये अलग अलग वॉल्स पे फोर्टिफाइड है। मतलब सिटाडेल भी एक फोर्टिफिकेशन में, एक रक्षा प्राचीर में है अलग से, और यहाँ का लोअर टाउन भी अलग से है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आता है कि सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर फोर्टिफाइड इन अ सेम वॉल, मतलब सेम रक्षा प्राचीर में हमारा सिटाडेल और लोअर टाउन है, सो वो लोथल है। लेकिन सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों फोर्टिफाइड है और अलग अलग वॉल्स में है, वो कौन है? कालीबंगन है। और सिटी विदाउट सिटाडेल कौन सा था? चान्होदारो सा। सो ये एक्सेप्शंस भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने जैसे आपको बताया मेजरली एक्सेप्शन से ही आते हैं।
एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो अभी तक हमने टाउन में देखा, लोअर टाउन, सिटाडेल, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से था। बैक टू मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ था ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इससे हमें 3 चीज मिलती है, ग्रेट बाथ, लार्ज ग्रेनरी या ग्रेट ग्रेनरी, जिसको भी आप जैसे भी बोलना चाहें, एंड असेंबली हॉल। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, बट ग्रेट बाथ, जिसको आप विशाल स्नानागार बोलते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का टैंक है, ठीक है, यहाँ पे वाटर फिल है। इसके आसपास एक कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड मतलब एक आंगन है, जिसमें तीनों तरफ आपके रूम, दोनों तरफ आप जो है रूम देखते हैं, 3 रूम है, जिसमें से एक रूम में एक कुआं है। अब जाहिर सी बात है, टैंक में पानी लाने के लिए कुएं का इस्तेमाल होता था। साथ ही आप देखेंगे एक ड्रेन भी है, एक नाली का भी यूज करा जा रहा है। जब रिचुअल बेदिंग हो जाती थी सो ये पानी जो है हटा दिया जाता था। इसके नॉर्थ और साउथ में दोनों तरफ क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। सो ग्रेट बाथ क्यों इंपॉर्टेंट, देखो मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑल ओवर हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो जो है लार्जेस्ट सिटी है। इंडिया में जो है वो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, उसकी भी हम बात करेंगे। सो ग्रेट बाथ बेसिकली जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो एक समझने का तरीका है, अगर इस ड्राइंग से कुछ समझ आए मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, इसके आसपास रूम्स हैं, नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियां हैं, एक रूम में कुआं है जिसपे से पानी लाया जाता है, और एक तरफ से यहाँ पे नाली भी है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम सोचते हैं कि एक रिचुअल बेदिंग की तरह हो सकता है, एक रिचुअल पार्ट में हमारे रिलीजियस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज होता हो ग्रेट बाथ। इसका फ्लोर जो है वो किससे बना हुआ था, पानी का जिप्सम से बना हुआ था, जिप्सम से और मोर्टार से बना हुआ था, ताकि चिकना ना हो, लोग फिसले ना, और आसानी से जो है यहाँ का इनका पर्पस पूरा हो जाए। अब रिचुअल बेदिंग की अगर हम बात करते हैं, सो नॉर्मली लेट्स टॉक अबाउट, अभी महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ इलाहाबाद में चल रहा है, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। हम रिचुअल बेद करते हैं, हम नहान करते हैं जिसे हम बोलते हैं। सो एक तरीके से विशाल स्नानगृह मोहनजोदारो में जो है हम देखते हैं। क्लियर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स। आप सिर्फ बुक्स से ये सोचेंगे कि हम रट्टा मार लें, हम पास हो जाए, नो। अभी आप देखिए ग्रेट बात की अगर हमने बात करी, ऑब्वियसली हमें महाकुंभ जो है वो याद आ जाएगा, राइट। सो इसी तरीके से हम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लार्ज ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब है अन्नागार या वेयर हाउस या स्टोर हाउस या अन्न भंडार, जहाँ पे ये अपना खाना जो है वो स्टोर करते थे, ठीक है, खाना स्टोर करते थे। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है वो बहुत उच्चतम व्यवस्था में, या उसका जो अबंडेंस है वो हम यहाँ पे ग्रेनरी में हम देखते हैं, ठीक है। मोहनजोदारो के अलावा भी हमें अन्न भंडार जो है या वेयर हाउसेस जो है वो कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या ग्रेन हाउसेस या ग्रेनरी सिर्फ मोहनजोदारो में है? नो, ग्रेन हाउसेज या ग्रेनरीज जो है वो हड़प्पा में भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में जो स्टोर हाउस मिला है वो हमें मोहनजोदारो से मिला है। असेंबली हॉल एज द नेम सजेस्ट एक मीटिंग प्लेस है, पिलर्ड मीटिंग प्लेस है, जहाँ पे हो सकता है कि उनकी मीटिंग होती हो। आई एम सॉरी फॉर दिस। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर मोहनजोदारो। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 एविडेंसेस, ये तीनों हमें जो एविडेंस मिले हैं, इसके अलावा मोहनजोदारो से और क्या मिलता है, मेल प्रीस्ट टॉर्सो या फिर हेड, हमको एक्चुअली हेड ही हम लिखेंगे, मेल प्रीस्ट हेड, ठीक है, जिसको प्रीस्ट किंग का हेड माना जाता है। दूसरा टेराकोटा डांसिंग मॉडल। टेराकोटा की जब बात होती है सो मॉडल भी क्या है, इसे हम गर्ल फिगराइन लिख देते हैं। टेराकोटा होता क्या है, राइट, कई बार बच्चों को यही क्वेश्चन होता है, बच्चे पूछते नहीं है। टेराकोटा बेसिकली मिट्टी ही होती है, मिट्टी की बनी हुई चीजें होती हैं। अगर आप कभी नेशनल म्यूजियम जाएंगे, नेशनल म्यूजियम का एक पूरा सेक्शन है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही डेडिकेटेड है, और वहां पे आपको बहुत सारे पॉटरी और ये सारी चीजें मिलेंगी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और वो टेराकोटा से बनी है। क्लियर, सो मेल टेराकोटा, और एक्चुअली ब्रॉन्ज की डांसिंग में स्टैचू हमको यहाँ पे मिली है, ब्रॉन्ज। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी
कहा जाता है कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युग कहा जाता है। ब्रॉन्ज दो मेटल से बनता है, कॉपर और टिन से, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग। सो ब्रॉन्ज की डांसिंग स्टैचू मोहनजोदारो से हमको मिलती है। सो मोहनजोदारो वाज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पा। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके। मोहनजोदारो के अलावा अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट साइट की बात करते हैं, लोथल। लोथल से हमको एक बंदरगाह, एक डॉक यार्ड मिलता है, ठीक है। डॉक यार्ड या बंदरगाह जो है वो लोथल से मिलता है, जिसका डॉक यार्ड क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है, जब ट्रेड हम किसी के साथ करते हैं नदी के किनारे या नदी से जब हम ट्रेड करते हैं, तो लोथल से हमको डॉक यार्ड मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्राफ्ट प्रोडक्शंस की, क्राफ्ट प्रोडक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट एक साइट है हमारी चान्होदारो। अभी हमने बात करी थी चान्होदारो की, सिटी विदाउट सिटीडल है चान्होदारो, से याद रखते चलना है फैक्ट्स को। चान्होदारो जो है या चान्होदरो जो है, क्योंकि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ये मेन सेंटर था क्राफ्ट प्रोडक्शन का। मेन सेंटर मतलब यहाँ पे क्या बनाए जाते थे, बीड्स। बीड्स मतलब मनके, मनके की माला है। मैं अभी भी आपको एक और बार बोल रही हूँ, कभी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखना हो तो ये सारी मनके की मालाएं, पॉटरीज जो है, ठीक है, ये सब नेशनल म्यूजियम में भी है। सो बीड्स की अगर आप बात करते हैं, मनके बनाने की फैक्ट्री थी यहाँ पे चान्होदरो की। मनके बनते किससे थे, पत्थरों के बने हुए होते थे, जैसे कि कार्नेलियन, ठीक है, लैपिस लज्यूली। अभी हम ट्रेड में देखेंगे कि ये स्टोन्स कहाँ से आते थे, जैस्पर, स्टेटन। अब ये स्टोन्स के नाम आपको बस पता होने चाहिए, इस पे इतना फोकस नहीं करना कौन सा स्टोन किस कलर का है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ये पूछा जाता है कि बीड किन चीजों के बनते थे। क्लियर? कार्नेलियन से, लैपिस लज्यूली से और इन चीजों से हमारी चान्होदरो में जो है बीड्स वगैरह हम बनाते हैं। इसके अलावा शंख के या शेल के जो बैंगल्स हैं, शंख। अब शंख कहाँ पे मिलेगा, जाहिर सी बात है शंख मिलेगा कोस्टल एरियाज में। कोस्टल मतलब समुद्री एरिया में मिलेगा। सो गुजरात की दो इंपॉर्टेंट साइट है हमारे पास, नागेश्वर एंड बालाकोट। यहां से जो है शेल के बैंगल्स मतलब शंख के बैंगल, शंख के मनके, ये सब नागेश्वर और बालाकोट से गुजरात में सिचुएटेड है ये साइट, जहां से हमें शंख जो है मिलते हैं। क्लियर? क्राफ्ट प्रोडक्शंस के लिए आई होप अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि व्यवस्था कैसी थी। अभी हमने बात करी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन अर्बनाइजेशन या शहरीकरण का मतलब ये तो नहीं है कि हमें एग्रीकल्चर नहीं चाहिए, हमें खाने को नहीं चाहिए, तो एग्रीकल्चर भी था। अर्बनाइजेशन कब होती है, जब एक सेटल्ड लाइफ होती है जिसमें अबंडेंस एग्रीकल्चर भी है, ट्रेड भी है, हमारे पास क्राफ्ट्स भी है। सो ये सारी चीज़ें एक अर्बनाइजेशन को जो है वो मुकाम तक पहुंचाती है। एग्रीकल्चर की बात करें, इसका एविडेंस हमने अभी पढ़ा था, मोहनजोदारो से अन्न भंडार मिलते हैं, हड़प्पा से अन्न भंडार मिलते हैं, ठीक है। कालीबंगन की अभी हमने बात करी थी, राजस्थान में है, सरस्वती घाघरा नदी पे है। सो कालीबंगन से हमें फ्लोड फील्ड्स मिलती है, मतलब खेत मिलते हैं जुते हुए। जुते हुए मतलब कि जब फरोज बना दिए जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो टू फरोज थी यहाँ पे, मतलब दो लाइन थे, जिससे ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा में एक समय पे दो अनाज को या दो क्रॉप्स को जो है वो उगाया जाता था। इसके अलावा कालीबंगा से मिट्टी का हल का हमें एक एविडेंस मिला है, वुडन प्लो, मिट्टी का हल। अब याद रखना है कि जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रॉन्ज है, कांसे है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आयरन नहीं है, ठीक है। ये चीज आ जाती है, आयरन या लोहा जो है वो हड़प्पा में नहीं है। सो हल किसके बने हैं, मिट्टी के बने हुए हल हैं, ठीक है, या लकड़ी के बने हुए हल है, लेकिन हल लकड़ी के बने हैं, सॉरी नॉट मिट्टी के, आयरन के या लोहे के हल जो है वो हम यहाँ पे नहीं देखते। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कालीबंगा से हमें मिलता क्या है। इसके अलावा चोलिस्तान एक साइट है जो कि पाकिस्तान में है, प्लस बनावली
कहाँ है ये साइट? हरियाणा में है। यहाँ से हमको फ्लोस के मॉडल मिलते हैं, हल के जो है मॉडल हमको यहाँ पे मिलते हैं। चोलिस्तान बनावली से टेराकोटा के बने, मिट्टी के बने हल के मॉडल जो है हमको मिलते हैं। सो याद रखना है कि एग्रीकल्चर भी हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, और एग्रीकल्चर के एविडेंस में अगर हमने मेहरगढ़ की जब बात करी थी, जाहिर सी बात है कॉटन भी उगाया जा रहा है। कॉटन के हमें एविडेंस, एक वुवन कॉटन का मतलब एक बुना हुआ कॉटन का कपड़ा हमको मोहनजोदारो से मिलता है। ठीक है, कॉटन के अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में और कौन से क्रॉप्स ग्रो होते थे? लेंटिल मतलब दालें उगाई जा रही है, मटर है, वीट है, गेहूं मेहरगढ़ में भी उग चुका है, गेहूं यहाँ भी उग रहा है, बार्ले है, जवार है, गुजरात में मिलेट्स है, मिलेट मोटा अनाज जिसको आप बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह की चीजें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखी जा रही है। सो एग्रीकल्चर हमने देखा, अबंडेंस में हुआ, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हम देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन भी है। सो इम्पोर्टेंट क्या होगा नेक्स्ट? हमारा ट्रेड, व्यापार किस तरीके से था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ट्रेड के लिए अभी हमने पढ़ा था लोथल है, जाहिर सी बात है, बंदरगाह यहाँ पे देखा गया है तो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। ठीक है, और ट्रेड हमेशा दो तरीके से होता है, व्यापार इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। क्लियर? इंटरनल मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के खुद में कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक दूसरे से वो लेते हैं, और नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। आई होप अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। सो इंटरनल में अगर हम देखें, जैसे मन के बना रहे हैं, अगर लैपिस lazuli की अभी हमने बात करी थी पीछे, सो आप देखोगे चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती हैं, आपको बस ध्यान रखना है। सो लैपिस lazuli आता था, सॉरी फॉर दिस, लैपिस lazuli, लेट्स जस्ट टेक अ शॉर्ट फॉर्म इट लैपिस lazuli या एलसेट, जो भी आपको लिखना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये आता है नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट मीन्स शॉर्ट हो गई अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में शॉर्ट हो गई जो जगह है, जब हमने एक जोग्राफिकल एक्सटेंट पढ़ा था, एक नॉर्दर्न वेस्ट साइड है, सो वहां से क्या आता है हमारे पास? लैपिस lazuli आता है। ठीक है, लैपिस lazuli हमें शॉर्ट हो गई अफगानिस्तान के साथ मिलता है इंटरनल ट्रेड में। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कार्नेलियन की, ये भी हमने देखा था चांद उधारों में, ये आता है गुजरात से। और क्योंकि ब्रॉन्ज है, कांसे है, ब्रॉन्ज का एक डांसिंग फिगर हमको मोहनजोदारो से मिला है, सो कॉपर के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है, आज भी हम इसे देखते हैं और हमने हर जगह देखा है, दैट इज खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। राजस्थान में खेतरी है, ठीक है, वहां से कॉपर जो है, तांबा जो है वो मंगाया जाता है। क्लियर? एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेडिंग सेंटर था या साइट थी जिससे हड़प्पा का एक्सटर्नल ट्रेड होता था, एक्सटर्नल आज इन मेसोपोटामिया से। ठीक है, मेसोपोटामिया के किंग थे सारगोन, उनकी एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, उस मैन्युस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया का 3 जगह से ट्रेड होता था, ओमान से, ठीक है, दिलमन मतलब बहारीन से, और तीसरा मेलुहा। मेलुहा जो है एक एंशियंट टर्म थी जो मेसोपोटामिया के राजा सारगोन ने हड़प्पन लोगों के लिए जो है वो यूज किया था। सो सारगोन राजा थे जिससे पता चलता है मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था, सॉरी। एंड मेसोपोटामिया का ट्रेड और किस तरीके से है, जैसे हड़प्पा की कुछ मोहरें जो है वो हमें मेसोपोटामिया से मिली है, ठीक, जिसमें हमें कुछ हड़प्पन सील्स जो है वो वहां पे मिली है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। ठीक है, हड़प्पन सील्स की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा हड़प्पन सील्स है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फीचर्स है वेट्स एंड मेजरमेंट्स। वेट्स एंड मेजरमेंट्स मतलब कि माप तोल के क्या पैमाने थे, माप और तोल के क्या पैमाने थे, क्या वेट्स थे। सो याद रखना है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज सिविलाइजेशन थी, तो जो वेट थे, जो माप थे, वो 2 तरीके से देखे जा रहे हैं, बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड और हमारा डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड। बाइनरी मतलब 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, एंड डेसिमल जो है वो हमारा है 160, 320, 552 एंड सो ऑन। सो ये
बाइनरी सिस्टम जब छोटे माप बनाए जाते थे, छोटे तोल बनाए जाते थे, और डेसिमल जब जब बड़े माप या बड़े तोल जो है बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चंस इस पे भी आ जाता है, वेट एंड मेजरमेंट्स पे भी। देखो अभी तक जिस पे भी मैंने पढ़ाया है, जो एक्सेप्शंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो उसका आपको ध्यान रखना है। स्केल्स हमें मिलते हैं, तोल हमें मिलते हैं, 3 तरह के मिलते हैं। आइवरी का स्केल एक हमें मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल से। कॉपर स्केल हमको मिला है, कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और शेल का बना हमें मिला है मोहनजोदारो से। 3 स्केल है, 3 पैमाने हैं जो हमें मिलते हैं। लोथल से मिलता है आइवरी का, आइवरी मतलब हाथी दांत का बना हुआ, ठीक है। कॉपर हड़प्पा से मिलता है। शेल का स्केल हमें मोहनजोदारो से मिलता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। जब हमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि 3 स्केल आपको दे दिए जाएंगे, ये बता दिया जाएगा कि आइवरी का कहाँ से मिला, हड़प्पा का कहाँ से मिला, लोथल का, या इनकरेक्ट कौन सा है या करेक्ट कौन सा है। क्लियर? देखो अभी आपको बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 12th बेस पे आते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज होते हैं और एक्सेप्शंस पे भी हमें क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिलीजन की। हड़प्पा में कौन सा धर्म था, या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का धार्मिक मान्यता क्या थी? तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना, हमें हड़प्पा की किसी भी साइट से आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है। नो टेम्पल। मंदिर है, मंदिर की एक तरीके की आर्किटेक्चर है, इस तरह का है, हमें कोई मंदिर नहीं मिला है। गर्भगृह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मूर्तियां नहीं मिली है, मूर्तियां मिली है। किसकी? टेराकोटा मदर गॉडेस की, मिट्टी की बनी या मृण मूर्ति जिसे बोलते हैं, मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली हैं, जो कि फर्टिलिटी के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है, उर्वरता के कॉन्सेप्ट को, फर्टिलिटी के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। सो मंदिर भले ही नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्तियां मिली है, सॉरी, मृण मतलब मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की या मदर गॉडेस की मूर्तियां हमें मिली है, जो किसके कॉन्सेप्ट को दर्शाती है? फर्टिलिटी की, विमेन की फर्टिलिटी के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। अब देखो उस टाइम पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, हम फेमिनिज्म या सो कॉल्ड चीज़ों का हम कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं नेचर वर्शिप का। सो टेराकोटा मदर फिगराइंस, मदर गॉडेस फिगराइंस। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमको मिलते हैं मेल लिंग या पैलेस, जिसको आप बोलना चाहते हैं, एंड फीमेल योनि, मिट्टी की बनी हुई, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी वर्शिप हो रहा है, जैसे मेल लिंग या पैलेस और फीमेल योनि को वर्शिप किया जा रहा है। हड़प्पा से हमको मिलती है मिट्टी की बनी हुई मेल लिंग या योनि हमको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बुल वर्शिप हम मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बुल था, जो सांड होते थे, उनकी पूजा भी की जाती थी, बुल वर्शिप होते थे, क्योंकि हमें बहुत सारी मोहरों पे जो है स्टील स्पेस स्टेटाइट की बनी हुई जो मोहरें होती थी, सेल खड़ी की मोहरें होती थी, उस पे हमें ये सारी चीजें जो है वो मिलती है। सो बुल को माना जाता था। अब ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि काऊ नहीं थी, भाई बुल था तो गाय भी थी, लेकिन गाय पूज्य नहीं थी। गाय का पूजा का कॉन्सेप्ट या काऊ होली एनिमल बनेगी लेटर वैदिक पीरियड में जाकर, लेकिन बुल अभी यहाँ पे वर्शिप है। माइट भी इसलिए क्योंकि बुल से या ऑक से ही आप हल को जोत सकते हैं, राइट। सो ये सारे कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे कि भाई गाय तो थी नहीं, गाय भी थी, बुल भी था, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे जो बोल देते हैं मैम काऊ तो थी नहीं तो बुल कैसे आएगा, राइट। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सील हमें मिलती है, एक मोहर है पशुपति सील, जो भी हमें बताता है कि शायद भगवान शिव को पूजा जाता था। इसको हम बोलते हैं प्रोटो शिवा, ठीक है, जो कि लेटर वैदिक के रुद्र से हम रिजेंबल करते हैं। तो सील जो थी पशुपति सील थी, शिव की प्रोटो शिवा सील थी, ये हमें याद रखना है। प्रोटो शिवा सील या पशुपति सील इन्हें क्यों माना जाता है? क्योंकि एक योगिक पोस्चर में, योगा की मुद्रा में एक ध्यान लगाते हुए शिव को दर्शाया जा रहा है, रुद्र को दर्शाया जा रहा है, जिसके आसपास एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, एलिफेंट, राइनो, डियर हैं, 2 हिरन उनके पैरों में बैठे हुए। सो ये सारी चीजें आपको रिलीजन के लिए याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, देखो
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पे अभी तक हमें कुछ क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि राजाओं का रूल होता था, किंग रूल करते थे। कुछ का मानना है कि किंग रूल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आर्मी के एविडेंस नहीं है, हमारे पास सेना नहीं हमें दिखी है वहाँ पे, या कोई मेजर डिस्ट्रक्शंस हमको नहीं दिखे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। हालांकि मोहनजोदारो, जिसको माउंड ऑफ डेड या मृतकों का टीला भी बोला गया है, क्योंकि एक कुएं के आसपास हमें लगभग 50 से 60 कंकाल मिले। हालांकि वो एक्सेप्शन है, लेकिन उस पर भी अभी तक ये चल रहा है कि क्या वो युद्ध की वजह से हुआ है, कोई बीमारी फैल गई थी। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सोशल लाइफ की जब हम बात करते हैं, सोसाइटी कैसी थी, तो जो टेराकोटा फीमेल फिगराइंस हमको मिली है, जो मृत मातृ देवी की मूर्तियां हमें मिली है, उससे इस तरह से कई बार माना जाता है कि सोसाइटी मैट्रिलिनियल थी। मैट्रिलिनियल मतलब मातृ सत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक पैट्रिलिनियल सोसाइटी नहीं माना जाता है हड़प्पा को। ऐसा माना जाता है कि माइट बी, आई एम सेइंग माइट बी मैट्रिलिनियल थी। तो कई बार असर्शन रीजंस में जब क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, तो माइट बी में ही आते हैं। तो क्यों माना जाता है? टेराकोटा फिगराइंस की वजह से माना जाता है। दूसरा, वेरियस क्लासेस एक साथ करती थी सेटलमेंट में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए जाहिर से बात है कल्टिवेटर्स होंगे, क्राफ्टमैन्स होंगे, आर्टिजन्स होंगे जो चांद जैसी जगह पर है। ट्रेड करने के लिए मर्चेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है, व्यापारिक एक ग्रुप होगा। तो इन सब चीज़ों को, क्राफ्ट पर्सन्स भी हमारे पास, कारपेंटर्स भी है हमारे पास, ठीक है। तो सोसाइटी जो थी वो एक तरीके से डिस्टिंग्विश्ड सोसाइटी थी, मतलब कि डिफरेंट वर्ग के लोग, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो थी वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। क्लियर? सो सोसाइटी, रिलीजन, वेट्स, मेजर्स, ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। और सील्स की जब हमने बात करी है, मोहरे जिसको हम कहते हैं, ये बनी होती थी स्टेटाइट नाम के एक पत्थर की, जिसको हम बोलते हैं सेल खड़ी, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मेजोरिटी ऑफ सील्स, मेजोरिटी ऑफ मोहरे जो है वो किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की या स्टेटाइट की। मोहरों का क्या यूज है? मोहर क्या होते थे कि कई बार इन मोहरों पे ना कोई एनिमल, कोई मोटिव, कुछ लिख दिया जाता था, कोई सिंबल बना दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि ट्रेड किसने किया है, किसको प्रोडक्ट देना है। सो ये सारे सिंबल्स जो थे वो बने होते थे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सो ये था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज है, एक दो एक्सेप्शंस हमारे रह गए हैं। धोलावीरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है 2021 में ही इसे टाइटल मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कई बार, क्योंकि रीसेंट है, हिस्ट्री में भी रीसेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जब हम धोलावीरा की बात करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिला है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिजर्वॉयर्स मिले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है कि अगर बारिश हो रही है तो उसके पानी को किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाएगा, ये धोलावीरा में से मिला है। साथ ही साथ धोलावीरा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, धोलावीरा जो है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडेल में, लोअर टाउन में, एंड इसका एक मिडिल टाउन भी था। और तीनों के तीनों जो थे ये 45 थे। क्लियर? सो धोलावीरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं एंड में आपको ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बिल्कुल रीसेंट पार्ट छोड़ जाते हैं और हिस्ट्री में क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं कि क्या कोई नई साइट एक्सकवेट हुई, क्या कोई नई साइट को हेरिटेज हमें मिला है। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो ऑप्शन है ये धोलावीरा को दिया गया है 2021 में, 2021 में। और हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कौन सी साइट जो थी हड़प्पा की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लोअर टाउन, सिटाडेल और एक मिडिल टाउन, और ये तीनों ही 45 थे, तो वो था धोलावीरा। आई होप अभी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिक्लाइन की अगर हम बात करें, डिक्लाइन में क्योंकि वेरियस थ्योरीज हैं, ठीक है, तो ऐसा जॉन मार्शल का मानना है या फिर हमारे व्हीलर का मानना है, मॉर्टिमर व्हीलर जो है, कि आर्यन इन्वेजन्स की वजह से, आर्यन के अटैक होने की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। आर्यन अटैक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम देखें 1600 में जब ये डिक्लाइन हुआ था हड़प्पा, 1500 से 1000 BCE और 1000 से 600 BCE तक में हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है, जो कि मेन आर्यंस पे बेस्ड है। क्लियर? सो ये था हमारा डिक्लाइन के बारे में। हालांकि सिर्फ आर्यन इन्वेजन की थ्योरी नहीं है हमारे पास,
थ्योरी जो है वो और किस पे है, थ्योरी है कि सरस्वती घाघर हाकरा नदी जो है वो सूख गई, इंदस ने अपना रुख बदल लिया, इंदस रिवर ने, क्लाइमेट चेंजेस हुए हमारे पास, बहुत ज्यादा बाढ़ आने लग गई। बाढ़ का एक साक्ष्य हमें मिलता है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो को ऐसा माना जाता है माउंट ऑफ डेथ, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। साथ ही साथ माउंट ऑफ डेथ तो है ही है, ऐसा भी माना जाता है कि ये सिटी जो थी ये 7 टाइम्स डिस्ट्रॉय हुई एंड इनहैबिट हुई, ठीक है। तो 7 बार उजड़ी और बसी है मोहनजोदारो की साइट, क्लियर। तो ऐसा माना जाता है कि फ्लड बहुत ज्यादा आते थे, ठीक है। और क्या क्या नहीं था, नहीं था भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में घोड़े का, हमें हॉर्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। आयरन मैंने आपको बता दिया, लोहा नहीं मिलता है। कौन कौन से मेटल है, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज किससे बना है, कॉपर और टिन से बना है। सो आई होप दिस इज इट, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको नाम दिया गया है, कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा एक बेसिक था हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीयूटी एग्जाम के लिए। ऑलराइट, I hope you all are well. So we will do it in next class. Thank you so much.